Yes. So after question number 1, now we are going to see question number 2. तो let us read this question number 2 now. आप आपकी बुक में पढ़ना, मैं भी पढ़ रहा हूं question number 2, right? The following is a balance sheet of Messrs. Unfortunate Limited as on 31st March 2011. Share capital given है, authorized and subscribed 4,000, 6% preference shares of rupees 100 each, 4 lakh. 2,000 equity shares of rupees 100 each, 75 per share paid up 1,50,000. 6,000 equity shares of rupees 100 each, 60 per share paid up 3,60,000. तो ये सब मिलाकर के आपके पास टोटल आ गया 9,10,000 का. 5% debentures having floating charge on all the assets rupees 2 lakhs. Interest outstanding on debentures also secured as above 10,000. Creditors 2,90,000. Land and building is given 2 lakhs. Land and building 2 lakhs. Plant and machinery 5 lakh. Patents 80,000. Stock at cost 1,10,000. Sundry debtors 2,20,000. Cash at bank 60,000 और profit and loss account is given 2,40,000. ठीक है. अब आपको इसके आगे गिवन है on that date company went into liquidation. The dividend on preference shares were in arrears for 2 years. The arrears are payable on liquidation as per the article of the company. Creditors include a loan of rupees 1 lakh on mortgage of land and building. तो ये आपका secured हो गया. The assets realized are as under land and building, plant and machinery, patents, stock, sundry debtors. Expenses of liquidation amounted to rupees 21,800. Liquidator is entitled to commission of 3% on all the assets realized and a commission of 2% on the amount distributed among the unsecured creditors. Preferential creditor amounting to rupees 30,000. All payments were made on 30th September 2011. Prepare the liquidator statement of accounts. ठीक है फ्रेंड्स, तो अगेन इस क्वेश्चन में आपसे लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पूछा है. ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि जब भी हम लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो आई बिलीव उसके लिए पहले हम वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे और वो वर्किंग नोट नंबर 1 में हम स्टार्ट करेंगे आपका कैश इन हैंड से. जितना भी आपके पास कैश अवेलेबल होगा यू विल स्टार्ट विद दैट ओनली ना. ओके, एंड आई बिलीव जब भी हम फॉर्मेट बनाएंगे तो फॉर्मेट बनाते टाइम आपको याद है मैंने आपको बताया था रिसिट्स अमाउंट पेमेंट अमाउंट यू आर गोइंग टू मेक. जब आप रिसिट्स अमाउंट पेमेंट अमाउंट बनाओगे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऊपर लिखोगे हेडिंग में और ये बनाओगे तो आई बिलीव उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब हम रिसिट साइड की बात करते हैं तो 4 चीजें उसमें आएगी. दैट 4 थिंग्स विच यू आर गोइंग टू राइट विल बी व्हाट. फर्स्ट विल बी कैश एंड बैंक बैलेंस. सेकेंड विल बी ANSP, assets not specifically pledged. Third thing you are going to write assets specifically pledged, that is ASP. और fourth you are going to write call from contributories. तो ये 4 हमारी रिसिट्स हो जाती हैं. और जब हम पेमेंट्स की बात करेंगे तो पेमेंट्स में आई होप यू नो दैट कि हम वो पेमेंट्स में पूरा पहले लीगल एक्सपेंसेस, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, then you are going to write liquidators expenses and then you are going to write that is liabilities with the floating charge. Then you are going to write unsecured creditors or unsecured creditors may I believe you write preferential and others and then you write preference shareholders and then you write equity shareholders. ये हमारा फॉर्मेट हुआ. ठीक है दोस्त. हाँ, बट अब हम जब वर्किंग नोट बनाएंगे तो मैं आपके साथ वर्किंग नोट पहले डिस्कस कर रहा हूं. ठीक है, तो जब आप वर्किंग नोट बनाओगे तो आई बिलीव इसमें सबसे पहले जो आपके पास कैश इन हैंड गिवन है दैट यू आर गोइंग टू राइट इन वर्किंग नोट दैट इज रुपीज 60,000. सबसे पहले आप वो कैश इन हैंड ले लोगे 60,000 का. फिर कैश इन हैंड के बाद ये जितने भी एसेट्स रियलाइज हैं वो सबको हम ऐड कर देंगे उसमें. तो हमारे पास एसेट रियलाइज में लैंड एंड बिल्डिंग जो कि सिक्योर्ड है वो भी आपको लेना है वर्किंग नोट में, तो दैट ऑल्सो यू विल टेक. तो लैंड एंड बिल्डिंग भी आप सिक्योर्ड वाला लोगे और आई बिलीव लैंड एंड बिल्डिंग सिक्योर्ड करके भी 2,40,000 गिवन है तो वो 2,40,000 लेंगे. प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख,
पेटेंट 60,000, स्टॉक 20,000 और डेटर्स 1,60,000। ये सबको आप लिख दोगे एक साथ ही कैश इन हैंड के साथ, तो आपके पास ये टोटल हो जाएगा 10,40,000। एक बार जब आपने ये सब लिख दिया 10,40,000 तक, आई बिलीव आप लोग सबको समझ में आ रहा है। ये सबको ऐड करके जब हमारे पास आ गया, तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू विल बी, आई बिलीव अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका पेमेंट करना। सबसे पहले पेमेंट करते हैं हम लीगल एक्सपेंसेस का। वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम उसको डैश कर देंगे। लीगल एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के बाद आई बिलीव नाउ वी विल राइट लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन के बारे में ये बात बताई थी कि जितना भी आप एसेट्स रियलाइज कर रहे हो, देखो वेट अ मिनट ना, यस, नाउ व्हेन यू विल रीड इट हैज बीन गिवन कि जितना भी आप एसेट्स रियलाइज कर रहे हो, वो एसेट्स रियलाइज का अगर आप पढ़ोगे तो वो द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 3% ऑन ऑल द एसेट्स रियलाइज। 3% देना है। तो अब ऑल द एसेट्स रियलाइज में हमेशा ध्यान रखना कैश इन हैंड को नहीं लेना है हमें, क्योंकि कैश इन हैंड रियलाइज थोड़ी होता है। तो इसलिए हम इसमें 10,40,000 माइनस 60,000, ये जो एसेट्स रियलाइज है सिर्फ ये लोग हैं, या फिर जो आपने 10,40,000 लिखा है उसमें से माइनस 60,000 का कैश बैंक माइनस कर दो। तो जब आप वो कर दोगे तो आपके पास एसेट रियलाइज 9,80,000 का आएगा, उसका 3% लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन माइनस कर दोगे आप, दैट विल बी 29,400। कैलकुलेटर में साथ में करते जाओ आप, तो वो 29,400 माइनस करोगे। जैसे ही वो माइनस करा तो उसके बाद हम माइनस करेंगे लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस। आई बिलीव क्वेश्चन में लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस इफ यू विल चेक 21,800 हमें गिवन है, तो हम वो 21,800 भी माइनस कर देंगे। यस, आप वो 21,800 जो गिवन है वो भी आप माइनस कर दोगे। 21,800 के बाद आई बिलीव हमारे पास बच जाएगा 9,88,800। दैट इज व्हाट विल बी लेफ्ट विद यू आल्सो, 9,88,800। आप कैलकुलेटर चलाते जाओ साथ में। इसके बाद हम क्या माइनस करने वाले हैं, तो अब हम माइनस करेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो आई बिलीव सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमारे पास कितने का था, 1 लाख रुपीज का, जो क्वेश्चन में गिवन था ना कि क्रेडिटर्स में सिक्योर्ड है 1 लाख रुपीज का। तो आई बिलीव हम वो 1 लाख रुपीज भी माइनस कर देंगे। तो जब आप माइनस करोगे वो 1 लाख रुपीज, तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा 8,88,800 कैलसी पर। इसके बाद बारी किसकी आती है, तो आई बिलीव इसके बाद बारी आती है आपकी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। क्वेश्चन में बताए थे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वर 30,000, ये दे रखा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वर 30,000। तो आई बिलीव आप वो 30,000 भी लेस कर दोगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लेस करते ही अब आपके पास जो बचेगा, अब आपको मैं पढ़ के बता देता हूं। ये क्वेश्चन में साथ में गिवन था, जब हमें रेम्यूनरेशन की बात आई थी तो रात साथ में ये भी गिवन था दैट अ कमीशन ऑफ 2% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो जब हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की बात करते हैं तो ये जो आपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को दिया, ठीक है ना, सिक्योर्ड वाला माइनस करने के बाद व्हेन यू आर पेइंग टू द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो आई बिलीव ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को भी जो हम अमाउंट दे रहे हैं, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का भी जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं, यस, जो हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का अमाउंट पे कर रहे हैं वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी है तो अनसिक्योर्ड ही। तो इसका मतलब इसका भी हमें 2% कमीशन देना है। तो अगर आपने 30,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को लिखा तो उसी के साथ उसी के नीचे लिखोगे आप वापस से माइनस लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 30,000 का 2%, एंड दैट अमाउंट विल कम टू 600 रुपीज। तो वो भी आप साथ में माइनस कर दोगे। तो जब आप वो माइनस करोगे तो अब आपके पास अमाउंट बच जाएगा 8,58,200 का। वंस यू गॉट दैट अमाउंट, तो अब आप इसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद किसकी बारी आती है, तो अब आती है बारी लायबिलिटीज विद फ्लोटिंग चार्ज की। तो लायबिलिटीज विद फ्लोटिंग चार्ज में आपके पास क्या क्या है, तो एक तो डिबेंचर्स है और उसके ऊपर का इंटरेस्ट है। तो आई बिलीव डिबेंचर्स 2 लाख रुपीज है और इंटरेस्ट 10,000 रुपीज है, तो 2,10,000 आप पूरा माइनस कर दोगे। तो व्हेन यू विल सबट्रैक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट 6,48,200। ये आपके पास बैलेंस बच गया। इसके बाद हम बारी लेंगे सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जो भी बच रहे हैं। तो आई बिलीव अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने के बचे, तो देखो आपके पास जब बैलेंस शीट में चेक करोगे तो क्रेडिटर्स 2,90,000 के थे। उस 290 में से जो 1 लाख था वो तो सिक्योर्ड का चला गया, तो बचा 190, उसमें से 30 आपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ले गया तो बचा 160। तो अब आप 160 का पेमेंट करोगे। जैसे ही 160 का पेमेंट करोगे वापस से ये अनसिक्योर्ड है तो इस अनसिक्योर्ड के साथ वापस से रेम्यूनरेशन भी लेस करोगे साथ में,
एंड दैट रेम्यूनरेशन विल कम टू 1,60,000 का 2% विल कम टू 3,200, साथ में माइनस कर दोगे, आप नीचे लिखोगे वापस उसके माइनस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 1,60,000 माइनस रेम्यूनरेशन टू द लिक्विडेटेड 2% 3,200, साथ में हमने ये भी कर दिया। वंस यू विल डू दैट तो आई बिलीव अब आपके पास 4,85,000 का बैलेंस बचेगा। अब इसमें से क्या माइनस करना है हमको, तो आई बिलीव अब हमको जो इंटरेस्ट है, देखो अब आप अगर वापस से बैलेंस शीट पे जा रहे हो तो आप चेक करोगे कि जो हमें क्वेश्चन में बताया था ऑल द पेमेंट्स, ये देखो लास्ट में क्वेश्चन में बताया ऑल द पेमेंट्स वर मेड ऑन 30 सितंबर 2011। इसका मतलब ये है कि चाहे आप जो भी पेमेंट कर रहे हो वो 30 सितंबर तक कर रहे हो, तो जो डिबेंचर्स हैं उनका भी पेमेंट 30 सितंबर तक हो रहा है। इसका मतलब जो डिबेंचर्स के ऊपर डेट ऑफ बैलेंस शीट से अप टू द डेट ऑफ पेमेंट 30 सितंबर तक का जो इंटरेस्ट है वो भी अनसिक्योर्ड ही कहलाएगा, तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो वंस यू विल पे दैट अमाउंट विल कम टू, कितना आ जाएगा वो अमाउंट, तो आई कैन से 2 lakhs का 5% आप निकालते हो तो 10,000 होता है, और 10,000 का 6% 6 मंथ्स का निकालोगे आप तो 5,000 होता है। तो आप वो 5,000 भी लेस कर दोगे, और जैसे ही आप वो 5,000 भी लेस करोगे तो आई बिलीव ये वाला अमाउंट जब आपने लेस करा तो अब आपके पास 4,80,000 बच गया। हाँ, अब ये अनसिक्योर्ड में नहीं है, ये फ्लोटिंग चार्ज के रिलेटेड ही था, राइट। दैट इज लाइबिलिटी अगेंस्ट फ्लोटिंग चार्ज में इसको हम ऐड करते हैं, तो इसलिए इसको अनसिक्योर्ड नहीं मानना है हमें, ठीक है ना। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं हो, और फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है जिसपे ऑल एसेट्स का आई वांट टू से चार्ज अवेलेबल हो, तो दैट इज फ्लोटिंग चार्ज। तो इसके ऊपर हमें रेवल्यूशन पे करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर राइटिंग दिस आई बिलीव अब हम 4,80,000 में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सारा क्लेम माइनस करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्लेम में क्या क्या आएगा, तो देखो साहब क्वेश्चन में उनका जो अमाउंट था वो 4 लाख था पहले, तो कैपिटल का वो ले लोगे आप। फिर साथ में बताया था the dividend on preference shares were in arrear for 2 years, the arrears was payable on liquidation as per इतना। तो अगर आप 4 लाख का 6% निकालोगे तो 24,000, 2 साल का निकालोगे तो आई बिलीव 24 और 24 48, तो 4,48,000 आपको इसमें से लेस करने हैं। तो आपके पास 4,80,000 बचा, उसमें से 448 लेस कर दोगे तो रिमेनिंग अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स विल कम टू 32,000। ठीक है, अब दोस्त इसमें एक पॉइंट अब जो है इंपॉर्टेंट ना, इसलिए लिक्विडेशन चैप्टर आपको पढ़ना है। अभी तक जो भी मैंने बताया ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वो तो आप भी आराम से कर पाओगे, 1-2 क्वेश्चन करते आपको आने लग जाएगा, मगर अब जो मैं बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो पॉइंट क्या है सर, तो देखो बेटा वो पॉइंट ये है कि अब जो ये 32,000 हमारे पास बचा है, राइट, बट हमको जब हम इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं तो इसमें 2 क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं। एक क्लास जिसने 75 रुपीज पे कर रखे हैं अभी तक, एक मिनट, हाँ यस, एक क्लास जिसने अभी तक कितना पे कर रखा है, आई बिलीव अगर आप चेक करोगे तो एक क्लास ने अभी तक हमको 75 पर शेयर पेड अप कर रखा है 2,000 शेयर्स पर, और जो 4,000 शेयर्स हैं उन्होंने सॉरी और जो 6,000 शेयर्स हैं उन्होंने 60 रुपीज ही पे करा है, राइट। तो अब हमें 32,000 डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, मगर हम 2,000 शेयर होल्डर्स 2,000 वालों को कितना देंगे और 6,000 शेयर्स वालों को कितना देंगे, क्योंकि इनसे हमें कुछ पैसे भी मंगवाने हैं, इनसे हमको कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज भी करना है, जो कि आपका रिसिप्ट साइड में अलग से भी आएगा इस बार। तो अब हम क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, इसमें हम नेट पेमेंट निकालते हैं। अब वो नेट पेमेंट निकालने का तरीका क्या है, तो देखो 32,000 तो हमारे पास बचा हुआ है जो हमें इनको देना है। अब हम इनका इसी यहीं पर वर्किंग नोट में ही अब आप ऐड करोगे नोशनल कॉल का अमाउंट। यू विल राइट इन द वर्किंग नोट नोशनल कॉल, ये सब अभी मैं दिखवाऊंगा आपको, पूरा वर्किंग नोट वापस से दिखाऊंगा। तो पहले अब आप लिखोगे नोशनल कॉल का अमाउंट। जब नोशनल कॉल की बात करेंगे तो अब हम दोनों से नोशनल कॉल मंगवाएंगे, राइट। तो व्हेन यू विल कॉल फ्रॉम बोथ द शेयर होल्डर्स, तो अब आप नोशनल कॉल का कितना मंगाओगे, तो देखो 2,000 वालों से उन्होंने हमको कितने रुपए दे रखे थे, 2,000 वालों ने 75, तो उनसे 25 रुपए और मंगवाएंगे। तो 2,000 इंटू 25 दैट विल गिव यू 50,000, और 6,000 वालों से 40 रुपीज मंगाएंगे, तो 6,000 इंटू 40 दैट इज 2,40,000, तो 2,90,000 का टोटल नोशनल कॉल हो गया। ये टोटल नोशनल कॉल करेंगे हम उसमें ऐड 32,000 में। तो जब आप इसको 2,90,000 को ऐड करोगे तो अब आपके पास
टोटल अवेलेबल जो हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है वो देना है 3,22,000. 32 plus 290 will give us 3,22,000. Once you got this 3,22,000 ना दोस्त, अब हमारे पास सारे 8,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स का सेम अमाउंट हो गया 100. तो अब हम ये 3,22,000 को डिवाइड कर सकते हैं 8,000 इक्विटी शेयर से. तो आपको पता पड़ेगा पर शेयर पर आप कितना रुपीस देने वाले हो. तो जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो 3,22,000 डिवाइडेड बाय 8,000 व्हेन यू विल डू, तो आई बिलीव यू आर गेटिंग द अमाउंट ऑफ 40.25 रुपीस पर शेयर. मतलब आपको एक शेयर के ऊपर 40.25 पैसे देने हैं. ठीक है ना, 40.25 रुपए देने हैं, सॉरी पैसे नहीं, 40.25 रुपीज यू हैव टू पे ऑन पर शेयर. अब हम क्या करेंगे, तो देखो अब मैं अलग अलग करूंगा वापस से. तो 2,000 वालों से 25 रुपीज लेने हैं और 40.25 रुपीज देने हैं. तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि नेट हमको उनको 15.25 रुपीज पे करने हैं. कैसे निकाला, 40.25 माइनस 25. तो इतना अमाउंट, क्योंकि 40.25 देना था और 25 लेना था, तो डिफरेंस का 15.25 इंटू 2,000 हम उनको पे कर देंगे. और उसके बाद जो 6,000 शेयर होल्डर्स हैं, वो 6,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का हमको लेना था 40 रुपीज और हमें उनको देना था 40.25. तो इसका मतलब हम उनको 0.25 दे देंगे. तो वंस यू विल डू दैट, तो 2,000 इंटू, when you will do this, 2,000 into 15.25, तो it will give you 30,500. और उसी के बाद आप लोग 6,000 into 0.25, तो आपको पता पड़ेगा 1,500 रुपए. और इन दोनों को ऐड करा तो वो देखो ऊपर का अमाउंट जो 32,000 था उसका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया. यही एक पॉइंट है कि जो अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बचता है उसको हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो उसके लिए आप हमेशा जब डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स होंगे तो पहले आप उनके लिए नोशनल कॉल करो, उनसे पूरा पैसा नोशनल कॉल वर्किंग नोट में मंगवाओ, तो वो टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया. फिर उसको आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टोटल इक्विटी शेयर से, तो आपको पर इक्विटी शेयर को कितना पे करना है वो आ गया. फिर आप डिफरेंट क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए लिखो. 2,000 के लिए 40.25 रुपीज देने थे और 25 लेने थे, तो 15.25 दे देंगे, तो उनका अमाउंट आ गया. और फिर 6,000 शेयर्स के लिए 40.25 देने थे, 40 रुपीज लेने थे, तो 0.25 उनका नेट अमाउंट आ गया. मल्टीप्लाई करा तो आपका जितना बैलेंस बचा था ना 32,000, उसका आपके पास ये पूरा ब्रेकअप बचेगा. And that is how you have completed this question number 2 also. मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखवाता हूं फ्रेंड्स अब, है ना. चलो, तो let us see the solution which is in front of you now. ये आपके नोट्स वैसे मैंने भेजे हुए हैं, तो आप उसमें से तो चेक कर ही सकते हो. अभी मैं आपको ये पढ़ा देता हूं. देखो, सबसे पहले इसने वही करा, कैश और बैंक और ये सारे एसेट्स रियलाइज को ले लिया. ठीक है, आई डोंट नो आपको ये कितना दिख रहा होगा. चलो मैं इतना कर देता हूं इसको आपको दिखाने के लिए. यस, अब विजिबल होगा. तो आई बिलीव ये देखो सारे एसेट्स को रियलाइज कर दिया. फिर हम उसमें से लीगल एक्सपेंसेस कुछ नहीं थे तो नहीं आया. फिर हमने उसमें से लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन दिस माइनस कैश और बैंक करके जो बचा उसका हमने निकाल दिया, ये आ गया. फिर आपने लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस जो एसेट्स रियलाइज जो क्वेश्चन में गिवन थे वही माइनस करें, तो आपके पास बैलेंस आया. फिर आपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिया, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिया. फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को दिया. जैसे ही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को दिया तो ये भूलना नहीं है, चाहे वो प्रेफरेंशियल है बट है तो अनसिक्योर्ड ही, क्योंकि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड होता है. तो प्रेफरेंशियल भी हुआ तो भी वो है अनसिक्योर्ड ही, इसलिए हमने वो प्रेफरेंशियल देते टाइम भी लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन दिया था. क्वेश्चन ये जो आप करने वाले हो सिंपल है, मगर कुछ पॉइंट जो आपको याद रखना है. ठीक है ना. इसके बाद हमने सेम लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन माइनस करा. फिर हमने लायबिलिटी विद फ्लोटिंग चार्ज को माइनस करा. फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का वापस नंबर आया तो फिर आपने लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन माइनस करा. फिर आपने इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटीज विद फ्लोटिंग चार्ज का माइनस कर दिया. फिर आपके पास यहां पर जब आप नेक्स्ट देखोगे तो आपके पास ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाला बचा. और फिर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का प्रेफरेंस डिविडेंड भी ले लिया साथ में, वो माइनस करके 32,000 बच गया. फिर देखो जैसा मैंने आपको बताया कि आप नोशनल कॉल लोगे,
नोशनल कॉल आपने लिया 2000 इंटू 25, 6000 इंटू 40 करके ये अमाउंट ऐड करा, 3,22,000 आया। फिर आपने पर शेयर का रिफंडेबल निकाला, 3,22,000 डिवाइड बाई 8,000 करके, तो आपके पास 40.25 पर शेयर रिफंड आया। फिर आपने यहां पर बनाया कि एक्चुअल रिफंड कितना होगा, तो 2000 को 40.25 देना है, 25 लेना है, तो नेट 15.25 देना है, तो ये आ गया 30,500। और 6000 को 40.25 देना है और उनसे 40 रुपीज लेना है, तो डिफरेंस आ गया नेट 0.25 का, वो हम दे देंगे 2000 का, तो 1500 रुपए आ गया। टोटल करा तो ये 32,000 ही आ गया जो आपके पास अमाउंट अवेलेबल था। एंड आफ्टर दिस आई बिलीव नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द फॉर्मेट। अब आपको मैं फॉर्मेट भी दिखा देता हूं। पहले मैं आपको ये डेबिट साइड दिखा रहा हूं, रिसिप्ट साइड। इफ यू विल चेक, कैश और बैंक बैलेंस हमने सबसे पहले लिख दिया 60,000, दिख रहा है आपको? यस। आफ्टर राइटिंग दिस कैश और बैंक बैलेंस, देखो उन्होंने एसेट्स रियलाइज लिखा, जिसको मैंने आपको बताया आप लिखोगे ANSP, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। हाँ, यही लिखोगे आप, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, ANSP, वो लिख दिया आपने सारे। इसमें सिर्फ मैंने लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लिया क्योंकि वो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज में आएगा, ASP में आएगा, तो वो देखो मैंने यहां पर लिख दिया था। इसको आप सरप्लस फ्रॉम स्टॉक भी लिख सकते हो, वैसे आप इसको ASP भी लिखोगे। तो हमने यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग दिखाया 2,40,000 का, उसमें से हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को माइनस कर दिया 1 लाख, तो हमारे पास 1,40,000 बच गया और सरप्लस का, तो इसको हम AS पे लिखेंगे। अब दोस्त, कभी कभी आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर क्या होगा अगर हम इसमें जब ये करने गए और हमारे पास ये लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000 होता और यहां पर सिक्योर्ड क्रेडिटर का अमाउंट 3 लाख होता, तो क्या होता सर? अगर ये ज्यादा होता तो क्या होता? तो दोस्त कुछ नहीं होता, हम ये यहां पर से 2,40,000 ही माइनस करते और जो बचा हुआ 60,000 बचता सिक्योर्ड क्रेडिटर का, वो अब आपका अनसिक्योर्ड बन जाता। और फिर वो जब हम ये लाइबिलिटीज के पेमेंट दिखाते हैं तो वहां पर उसका पेमेंट दिखा देते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के नाम से। हाँ, जहां पर आप ये अनसिक्योर्ड दिखाते हो ना, यहीं पर चल जाता वो बचा हुआ सिक्योर्ड लाइबिलिटी जो पे नहीं करा। अरे पैसा आएगा उतना ही तो जाएगा, तो बहुत सिंपल चीज है जो ये आप कर रहे हो, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने ये भी कर दिया। और उसके बाद देखो लास्ट में मैंने कॉल जनरेटर्स या कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज को डैश डैश करा, क्योंकि मैंने चेक कर लिया था कि मेरे को उनसे कुछ पैसे मंगवाने की जरूरत नहीं है। जो उनके कॉल जनरेटर्स थे या जो हमको कॉल मंगवाने थे वो सब मंगवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो और रिफंड करना था, वो हमने निकाल लिया था। यही इसमें पॉइंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, यही इसमें पॉइंट है। और ये क्वेश्चन करने में मजा बहुत आता है, वो जब एंड में निकालते हैं तो कितना सिंपल तरीके से समझाया मैंने आपको वो, राइट। हाँ, अब हम इसके बाद आगे देखते हैं इसमें ही। तो देखो लीगल एक्सपेंसेस डैश कर दिए, ठीक है ना, आपके सामने चल रहा है ये, लीगल एक्सपेंसेस डैश कर दिए। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को हमने जितने थे वो अमाउंट सारे को ऐड कर दिया हमने, और फिर हमने दिखा दिया 33,200। फिर हमने लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन था। फिर हमने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी बता दिया 21,000, जितना भी था आप चेक कर सकते हो पूरा पूरा, वो सब दिखा दिया। फिर हमने लाइबिलिटी, पहले हम लिखते हैं लाइबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस, उसमें प्रिंसिपल भी और पूरा इंटरेस्ट साथ में दिखाते हैं हम, तो वो हमने दिखा दिया। फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड के 2 पार्ट्स, प्रेफरेंशियल और अदर्स, 30,000 और 1,60,000, 1,90,000 दिखा दिया। और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने 4,000 शेयर्स को दिए थे, 4,48,000, तो डिवाइड कर दिया, तो आपके पास अमाउंट आ गया पर शेयर का। और सेम वे यू डिड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑल्सो, 2,000 को 15.25 और 6,000 को 0.25, और आपका अमाउंट आ गया। इस तरीके से आपने ये आपका पूरा प्रिपेयर कर लिया। तो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट लेक्चर में।